Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting exercise 18.2, and in this exercise we will discuss about direct and inverse variation. So as you know, we have completed this exercise, so just one or two question I will do for you. So what is direct variation? For example, in your question, the question is y is directly as x. So how to make an equation? So you will write y, that is a sign of proportion to x. Direct means if one quantity increase, other is also increase. So that means y and x both are in front of them, and if y increase, x increase, if y decrease, x decrease. जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो जो वैल्यू पहले है यहाँ पर y पहले, सो y विल बी फर्स्ट, और जो बाद में है वो बाद में. डायरेक्ट के लिए आपने दोनों वैल्यूज़ को ऊपर रखनी है, ठीक है. इफ़ दिस क्वेश्चन इज़ लाइक y इज़ इनवर्सली एज x, सो दैट मीन्स y proportionality sign for inversely x. Inverse means 1 over x. Okay. For example, the question is like y is directly as x and inversely as z. So in this case you can see both conditions are given, directly and inversely. Inversely means the one quantity increase, other is decrease. So in this case, if y is directly as x, means if y is increased, x is also increased, but z is inversely, y inversely to z. That means y, sign of proportionality, x is directly, so that means x on above side, and what is inversely? Inversely is z. So x over z. So this is my equation. In the very next step, y equals to constant k x over z. जब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा k. ओके, दीज आर द, अगर हम इसको सॉल्व करें y इज इक्वल्स टू के एक्स, और अगर हम इसको सॉल्व करें दैन y इज इक्वल्स टू k over x. Okay, now let's start some questions. It's question number 6 of exercise 18.2. Let's solve it. The volume of V of a gas varies inversely as square root of pressure P. यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी हेल्प से आप क्या बनाएंगे इक्वेशन. वॉल्यूम V इन्वर्सली एज, इन्वर्सली मीन्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P. सो इन्वर्सली एज 1 over square root, that is square root of pressure P. Volume of gas is inversely proportional to square root of P. That means if volume increase, pressure decrease. It's inversely proportional. Okay, now some values are given. V equals to 12 and P equals to 9. अगर volume 12 है तो pressure 9 है, और ये जो स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो आपको K की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन होती हैं, ठीक है. इन द नेक्स्ट स्टेप, sign of proportionality removed, k is here 1 over square root of p. Now putting the values of these values, v equals to 12 k and 1 over square root of 9. In place of p we will write the value of 9. Now you can solve it. Square root of 9 is 3, 1 over 3. Now 3 will be shifted on the other side to find value of k. 3 multiplied by 12 equals to k. K ones are k. 3 into 12 is 36. So this is a value of k. जब भी क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन होती है, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, k की वैल्यू को, जो हमारा सेकेंड स्टेप में जो k आता है, प्रोपोर्शनलिटी के बाद k आती है, उसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं. इसमें आप k की वैल्यू पुट कर देंगी. v इक्वल्स टू 36 1 over
रूट ऑफ पी। और आप इसको 36 वनज़ा भी कर सकती हैं, दैट मीन्स 36 ओवर रूट पी। अब क्वेश्चन आगे मज़ीद पढ़ें। फाइंड पी की वैल्यू फाइंड करें, प्रेशर फाइंड करें व्हेन वॉल्यूम इक्वल्स टू 4। इक्वेशन जो आपने न्यू इक्वेशन बनाई है उसको लिखें अगेन, दैट इज़ 36 ओवर रूट पी। इसमें आपको पी और वी अब गिवन नहीं, बल्कि वी आपको गिवन है और पी आपको फाइंड करना है। तो आपने वी की वैल्यू लिखी 4, 36 ओवर रूट पी। हमें क्या फ़ाइंड करना है? पी फाइंड करना है। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आप एक तरफ कर लें, डिवाइड में पी है, आप वहाँ पर शिफ्ट करेंगी, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ पे डिवाइड, 36 ओवर 4, 4 1 4 9 रूट पी इक्वल्स टू 9। हमें सिर्फ पी फाइंड करना है एंड दैट इज़ रूट पी। सो फॉर रिमूविंग दिस रूट वी विल टेक स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, taking squares on both side, so squares is root cancel, p equals 9 9s are 81. So question is solved. I hope you got it. Again देख लें, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आपको 18.2 के सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही करेंगे। आपने क्वेश्चंस को गौर से पढ़ना है, क्वेश्चंस को देखते हुए। अगर इन्वर्सली है तो 1 ओवर, अगर इन्वर्सली नहीं है तो दोनों वैल्यू आमने सामने। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो आपने पी के ऊपर स्क्वायर लगाना है, क्यूब रूट लगा तो आपने क्यूब रूट लगाना है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप जो है इक्वेशंस बनाएंगी और प्रोपोर्शनलिटी साइन के बाद के लगाएंगी। जो स्टार्टिंग में वैल्यूज़ हैं उसको पुट करके सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड करेंगी। के की वैल्यू जब आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगी और इसको सॉल्व कर लेंगी। फिर आपके पास जो आगे वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। होप यू गॉट इट।